Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Inspiration Talks. I am very excited about today's episode because आज की इस episode में मेरे साथ एक dentist है जो कि ना सिर्फ एक dentist है बल्कि she is an entrepreneur. So before any delay, let's welcome her. Assalamu alaikum फरवा, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। सबसे पहले फरवा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फरवा। तो फरवा, क्या आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकती हैं? As you all know, my name is Farwa and I'm a dental surgeon by profession. I have been practicing for almost 4 years now on a private setup in Rawalpindi. I live in Rawalpindi and I graduated from Lahore. Besides that, I have a side hustle. मैं Forever Living Company की FPO हूँ. I have a separate Instagram account for that. इस पे मैं अपने products को promote करती हूँ और network marketing करती हूँ उनकी. And उसके अलावा blogging is my like a hobby. So yes, so I'm doing like dentistry. Okay, great knowing you. So Falwa, as your dentist, so what made you feel like dentistry is the right field for you? Since from my childhood मुझे मैं जो है शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं. मुझे साइंसेस बहुत पसंद थे, साइंस सब्जेक्ट्स, और मैं बचपन में भी ये कहती थी कि आई वांट टू बी अ साइंटिस्ट. So as I grew up, I realized कि I have a good aptitude to become a doctor, और मेरा inclination medical sciences और biology subject इसकी तरफ बहुत ज़्यादा था. Okay. So I felt कि I have that germ inside me कि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ अच्छी. Okay, great to know that. So, what about COVID? What do you think about COVID-19? As it's more than a year and it's still there. So, what is your opinion on COVID-19? Yeah, you're right. It has affected a lot of aspects of our life. So I think कुछ मतलब चीजें जो COVID-19 की वजह से affect हुई हैं, change हुई हैं, just for good, the change is for good and some are not good. Especially I being a dental surgeon, I have realized कि मेरी जैसे dentistry की जो practice है वो भी itself COVID-19 की वजह से काफी ज़्यादा affect हुई है. Other than that, there are several other areas of life जो कि COVID-19 की वजह से affect हुए हैं. चलिए फरवा, अब हम रिवाइव कर लेते हैं थोड़े बचपन को. तो जब आप छोटी थी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? Yeah, I liked studying sciences actually. मुझे sciences बहुत पसंद थे शुरू से ही. मुझे साइंस पढ़ने में मजा आता था, तो I used to say कि मुझे साइंटिस्ट बनना है. I will invent some math. वो मेरे लिए एक stress releasing subject होता था. तो yes, these two basically were my favorite. Okay, great to know that. Acha, when you were little, what did you thought would be awesome to be an adult, but it isn't as awesome as you thought it would be? Yeah, I used to think life is very much easier after you complete your studies. So I thought after you graduate, you have been through the toughest part of your life and all the hurdles are over. So basically, as a child, मेरे लिए professional life एक बहुत charismatic थी. But in reality, when you actually step into it, you realize it's very stressful, it's very tough, it's very competitive. So the reality is a lot much different from what I used to think as a child. It's not that simple. It's not that the road is not that easy and smooth. There are lots of like ups and downs and hurdles, and the road is bumpy. There are bumpy. Exactly, it is. It is. There are a lot of obstacles. कोई भी चीज आपको फौरन से पकी पकाई नहीं मिल सकती कहीं पे भी. Like one has to do a lot of efforts to get success. हाँ बिल्कुल ठीक. अच्छा, तो जब आप छोटी थी, क्या did you have any fear? मुझे दो चीजों से बेसिकली डर लगता था. एक चीज तो है I was and I still am acrophobic. मुझे ऊंची जगहों पे जाने से बहुत डर लगता था. और मतलब whenever I'm on at some place which is at height, तो my legs get shaky और मेरी pulse तेज हो जाती है, heartbeat तेज हो जाती है. So I still face that fear. I have grown up with that phobia. So second fear में road fear. So वो कम हो गया. So I can be on my own now. But as a child, मैं जब भी रोड पे जाती थी, especially highways, अगर बहुत तेज गाड़ियां गुजरी हैं, बहुत रश वाली रोड है, तो I used to panic a lot कि how I'm going to cross the road and get on the other side.
अच्छा, तो आपके फेवरेट कार्टून्स कौन से थे? Yeah, I think the classic, all of the 90s के जितने भी किड्स हैं उनके लिए तो टॉम एंड जेरी उनके फेवरेट, या लूनी ट्यून्स या इस टाइप के, हम लोग के उस टाइम पे तो ये वाले कार्टून्स हुआ करते थे जो कि लाइक आई थिंक उनको हम अभी भी देखें तो वी आर नॉट बोर्ड ऑफ देम, अभी भी हम एंजॉय करेंगे उसको देखना। और जो डिज्नी मूवीज थी, लायन किंग जैसे हो गया, अलादीन और इस टाइप की डिज्नी कार्टून मूवीज थी सारी, वो भी बहुत अच्छी लगती थी। बिल्कुल ठीक कहा, टॉम एंड जेरी इस तरह के कार्टून है जो हर कोई एंजॉय करता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, एवरीवन लव्स टू वॉच टॉम एंड जेरी। अच्छा, तो जैसे आप फॉरएवर प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं, तो व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर फॉरएवर ब्रांड? लाइक व्हाई नॉट सम अदर ब्रांड? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक जैसे आपने भी क्वेश्चन पूछा था कि कोविड-19 की वजह से क्या क्या चेंजेस आए हैं। हाँ। बेसिकली ये थॉट मुझे क्वारंटीन जो टाइम था हम लोगों का, उसके ही टाइम पीरियड में मुझे ये आइडिया आया फॉरएवर लिविंग कंपनी के बारे में, बिकॉज मेरी डेंटिस्ट्री की जो अपना एक मेन प्रोफेशन है, उसकी प्रैक्टिस काफ़ी स्लो डाउन हो गई थी एंड आई wasn't getting so much of my patients, और मेरे काफ़ी मतलब मैं घर पे टाइम स्पेंड करी थी। सो आई थॉट कि आई शुड लुक फॉर समथिंग वर्क फ्रॉम होम, ताकि मैं घर पे बैठ के कुछ कर सकूँ ना। सो आई वाज सर्चिंग अबाउट डिफरेंट बिजनेसेस जो कि जिसकी इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हो और मैं इजीली उसको लर्न कर सकूँ, मैं करूँ। सो आई गॉट टू हेयर अबाउट फॉरएवर लिविंग कंपनी। मेरी एक फ्रेंड है जो कि वो मेरे से पहले से ये कर रही थी। आई वाज वेरी फैसिनेटेड एंड इंस्पायर्ड अबाउट दिस आइडिया जब उन्होंने मुझे इसके बारे में सारा कुछ बताया, एंड आई थॉट ये बहुत ईजी है मेरे लिए कि मैं इसको स्टार्टअप कर लूँ। और काफ़ी लाइक आई सीखने को भी बहुत कुछ नया मिलेगा, और टाइम मतलब आपको एक जो है एंगेज करने का बहुत एक ये यूजफुल तरीका है। सो दैट्स व्हाई जो बेसिकली क्वारंटीन टाइम पीरियड था व्हिच आई वाज स्पेंडिंग एट होम, दैट पुश्ड मी टुवर्ड्स द फॉरएवर लिविंग कंपनी, और मैंने वहां से इस चीज का स्टार्ट किया। Oh, okay, great to know that. Acha, so what is the best quality of this brand? Like, what would you like to say to your audience? Why do they buy Forever products? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये यूएसए का एक ब्रांड है, और वैसे भी मतलब अब जो लोग इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जिन्होंने बाहर की ब्रांड्स को यूज किया हुआ है, सो दे नो इट इन अ मच मच बेटर वे कि जो अच्छे क्वालिटी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और एक लो क्वालिटी और सस्ते प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो जो यूएसए में, यूके में, स्पेशली मिडिल ईस्ट में जो लोग रहते हैं, उनको फॉरएवर लिविंग कंपनी के प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी काफ़ी पता है, बिकॉज वहाँ पे इसके आउटलेट्स हैं, प्रॉपर स्टोर्स हैं, शॉप्स हैं। बट इन पाकिस्तान यहाँ पे सिंस वी डू नॉट हैव देयर स्टोर्स या हमारे पास शॉप्स नहीं है, तो वी हैव सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि हम यूजुअली लोगों को गाइड करते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में। मोस्टली इनके एलोवेरा प्रोडक्ट्स हैं, और एलोवेरा हम जो है, एलोवेरा में बहुत सारी स्पीशीज हैं और डिफरेंट टाइप्स के एलोवेरा आते हैं। नॉट ऑल एलोवेराज हैव सेम काइंड ऑफ रिजल्ट। तो जो एलोवेरा फॉरएवर लिविंग कंपनी यूज करी है, इट्स कल्टिवेटेड इन एरिजोना एंड इट हैज द बेस्ट ऑफ द क्वालिटी रिजल्ट्स। और मतलब डेफिनेटली अगर आप इसके रिव्यूज देखें, इट्स 42-year-old कंपनी, इट्स फंक्शनिंग इन 160 प्लस कंट्रीज। सो ऑब्वियसली अगर इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे थे तो ही इतना एक्सपेंशन हुआ ओवर द इयर्स, एंड पीपल हैव बीन यूजिंग इट एंड गिविंग अस वेरी पॉजिटिव रिव्यूज। दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड कि इट्स वर्थ स्पेंडिंग मनी ऑन इट, कि यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। That's right, Forever products वाकई काफी अच्छे। Oh, okay, great to know that. अच्छा, तो what are the best products for weight reduction in Forever? Like nowadays, बहुत से लोग C9 को prefer करें for weight reduction. What would you like to say on this? Yes, डेफिनेटली C9 बहुत एक फुल फ्लेज्ड पैकेज है। इसके अंदर आपको हर चीज को डिटॉक्स, आप वेट लॉस, एंड नॉट जस्ट फॉर वेट लॉस एंड डिटॉक्स, आई वुड से कि अगर आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं, आपके स्किन एक्नी प्रॉब्लम्स हैं, इस टाइप के मसले हैं, वो भी सॉल्व आउट हो जाते हैं। और पीसीओज है, जैसे लड़कियों में बहुत कॉमन हो गया हुआ है आजकल पीसीओ का प्रॉब्लम, वो पीसीओज के लिए बहुत अच्छे हैं। फर्टिलिटी इश्यूज हैं, बहुत सारे लोगों को इसके बाद दे कंसीव्ड माशाल्लाह बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ C9। सो वेट लॉस के अलावा भी इसके बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, और आप उसको और चीज़ों में भी यूज कर सकते हैं। लिवर डिजीज है, जैसे कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज हैं, डिफरेंट
और प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास स्किन हेयर फॉल रिलेटेड इश्यूज के लिए भी हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसमें एक वास्ट एक हमारे पास एक रेंज है। सो फर्स्ट यू टेल अस योर कंप्लेन, और उसके अकॉर्डिंगली एक जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, तो जो हम FBOs हैं फॉर एवर लिविंग कंपनी के, वी नो कि फॉर द कंप्लेन इसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा होगा, वो हम आगे इसी तरह रिकमेंड करते हैं। Now it's time to let's imagine and inspire. So, if you win a lottery ticket, for example, infinite amount of money, how will you spend? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे गिफ्ट्स लेने का, लाइक फॉर माय लव्ड वंस, फॉर माय फैमिली, मुझे गिफ्ट्स लेने का बहुत शौक है। सो आई थिंक जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे सिबलिंग्स हैं, और जो मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं, आई थिंक मैं गिफ्ट्स लेना पसंद करूंगी सबके लिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी ये होगी कि मैं सबके लिए जाके शॉपिंग करूँ। सेकेंड ये कि ऑब्वियसली देयर वुड बी एन अमाउंट दैट आई वुड वांट टू कीप एज फॉर चैरिटी, कि आप कहीं पे भी किसी जगह पे कोई फाउंडेशन है, कोई NGO है, कोई नीडी पीपल है, तो वहाँ पे आप उनको भी आप डेफिनेटली एक प्रोपोर्शन उनके लिए भी रखना चाहिए। एंड आई थिंक इट्स वेरी वाइज कि अगर आपके पास, जैसे आप कहेंगे अनलिमिटेड लॉटरी निकल है, ये तो एक पोर्शन आप अपनी सेविंग के लिए भी रख लेंगे फॉर फ्यूचर। अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं किसी भी चीज में, तो यू शुड कीप इट फॉर योर सेविंग्स। And there are several more, like काफी plans, like I plan on to doing some certifications, some clinical courses which are pending. So if I get a unlimited lottery, so I would definitely reach out for those academic courses. Okay, great to know that. What about time machine? If you get a chance for time machine, आप क्या past में जाना पसंद करेगी या future में? I would like to go back in my past, especially in my childhood. I think childhood best time period hota hai. It's the most easy phase of your life, most stress free, most enjoyable, most playful phase of your life, जिसमें आपको बस I think हर चीज आपके parents look after कर रहे होते हैं. You don't have to worry about anything. हर चीज आपको ready made मिल जाती है, and you don't have any kind of responsibilities, and कोई जजमेंट नहीं होती है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। तो आई थिंक चाइल्डहुड जो है वो बेस्ट टाइम पीरियड है। आई वुड लाइक टू गो बैक एंड रीलिव माय चाइल्डहुड, माय स्कूल डेज, रीलिव द मोमेंट्स विद माय फ्रेंड्स, माय कॉलेज मेट्स, वो वाला सारा टाइम पीरियड। अच्छा, if you get a chance to become a fiction character of any movie, series or cartoons, तो कौन सा character would you like to become? As a teenager, I grew up as a fan of Twilight Saga ना, तो मैं नॉवल भी मैंने पढ़े हैं उसके सारे, और मैंने उसकी मूवीज भी देखी हैं। एंड देन आफ्टरवर्ड्स मैं जो वैम्पायर डायरीज है पूरा सीजन है, वो भी मैंने बड़े शौक से देखा हुआ है। तो while watching all this kind of seasons and movies, I was very fascinated and attracted to the vampire kind of characters जो fictional होते हैं। So उनको देख के मुझे बड़ी वो दिखाते होते थे, उनके कैरेक्टर को जैसे डिस्क्राइब किया होता था, तो मुझे वो बड़ा मजे का लगता था। सो यस, इफ आई गेट अ चांस, आई थिंक मैं उसी टाइप का कोई कैरेक्टर पिक करूंगी, वैम्पायर काइंड का। बिल्कुल। Oh, that's great choice though. What about languages? Do you have interest in learning languages? Like ये वाली लैंग्वेज आती है, वो वाली? हाँ, आई थिंक इट्स ये एक एडिशनल टैलेंट, आई वुड से नॉलेज है। Why not? I mean, अगर आप लर्न कर सकते हैं और आपकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, तो आई थिंक करनी चाहिए। आपको हेल्प करेगी ये डेफिनेटली आपके फ्यूचर में, और इफ यू आर ट्रैवलिंग टू डिफरेंट कंट्रीज स्पेशली, आपको वहाँ पे भी हेल्प करेगी। हाँ, तो कोई लैंग्वेज की डिजायर कि मुझे ये लैंग्वेज आती हो, वो आती हो? थोड़ी कूल लगती है, लाइक फ्रेंच के उसका एक्सेंट और उसके जो वर्ड्स हैं, तो वो मुझे थोड़ा लाइक रिलेटिवली मजे की लगी है। मुझे फ्रेंच लैंग्वेज अच्छी लगती है। बाकी तो चाइनीज जापानीज तो काफी मुश्किल लगती है, तो वो आई डोंट थिंक सो। फ्रेंच मजे की लगती है, अरेबिक मुझे मजे की लगती है। So I think I would like to go for these two. Okay, all the best. If you get a chance to learn languages, all the best for it. Does anyone inspires you in life? Like बहुत से लोगों की inspirations होती हैं लाइफ में, तो what about you? क्या anyone inspires you in life? I think इंस्पायर अगर हम अपनी इस्लामिक हिस्ट्री में जाएं, सो देयर वी गेट अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। हमें बहुत सारे ऐसे हमारे प्रॉफिट्स और कंपेनियंस, अगर हम उनको प्रॉपरली स्टडी करें उसके बारे में, तो इतने इंस्पिरेशनल हमें कैरेक्टर्स और एग्जांपल्स मिल जाते हैं। तो आई थिंक देयर कैन नथिंग बी बेटर देन आवर ओन जो हमारे इस्लामिक हिस्ट्री में जितने भी फिगर्स रह चुके हैं, तो
उनसे हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए. We should learn from all of them, especially हमारे Prophet peace be upon him, अगर हम उनके बारे में. अच्छा, जब गुस्सा आता है तो क्या आप करती हैं? गुस्से में मोस्टली मैं जो है खामोश हो जाती हूँ. मेरा जरा क्वाइट टाइप का गुस्सा होता है, तो मैं उतनी वायलेंट या एग्रेसिव गुस्सा से नहीं होती या शो नहीं बताती. मैं क्वाइट हो जाती हूँ. और मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, स्पेशली जैसे मेरी मदर है, तो दे ऑल नो कि मैं अगर क्वाइट हूँ या मेरा मूड ऑफ है या मैं चुप करके बैठी हूँ कोने में, सो देयर इज समथिंग बॉदरिंग मी. तो या मैं नाराज होकर एक जगह पे कमरे में बैठ जाती हूँ. सो या there is this kind of depression जो उन्हें पता चल जाता है फिर. So like you don't take off your anger, you just keep it in your side. हाँ, कह सकते हैं like passive type का. लेकिन ये कि once someone approaches me or talks to me or they ask me out कि क्या मसला है भी, तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि है. लेकिन वैसे उसमें से शोर शराबा नहीं मचाती. Initially I stay quiet. And what about stress? What do you do when you are stressed? I think so best way to release your stress जो है मैं वॉक करती हूँ ओपन एयर बाहर जाके. अगर आप किसी भी ओपन फ्रेश एयर में वॉक के लिए निकल जाएं और आप म्यूजिक सुने साथ में, आई थिंक ये तो वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. बट अगर आप स्ट्रेस में निकलते हैं तो इट रियली हेल्प्स यू रिलीज ऑल द हैप्पी हार्मोन्स और आपका मूड काफी अच्छा हो जाता है. आप म्यूजिक सुने अच्छा सा, आप वॉक करें. और उसके अलावा आई थिंक क्लीनिंग बहुत अच्छी चीज़ है. अगर आपको ऑर्गेनाइज करें अपने रूम को, आप डीक्लटर करें अपना अननेसेसरी स्टफ सारा और क्लीनिंग करें, उससे भी एक आपको काफी पीसफुल फीलिंग आती है आफ्टर यू डू इट. Exactly, बिल्कुल ठीक कहा. Okay, Farwa, so where do you see yourself in future? Do you see yourself as a successful dentist or a businesswoman? I don't know. Obviously, देखिए, my first love is medical profession, dentistry, जिसके लिए मैंने बचपन से बहुत मेहनत की है. तो obviously उसी को मैं सबसे पहले तो मेरा फोकस है कि to be more accomplished, to be more skilled dentist. तो मैं जितना ज़्यादा लर्न कर सकूँ वो मेरे लिए कम है. And obviously now that I have started this business recently, तो उसमें भी मैं जितना सीखूँ, I think आपको सीखना चाहिए अपने प्रोफेशन से हटके भी. आपको कोई चीजें उसके अलावा भी आपको पता चल रही, तो इट्स ऑलवेज अ बोनस. सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेंटिस्ट अच्छी बनूं, मैं बहुत अच्छी वाली डेंटिस्ट बनूं. ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट. ओके, ग्रेट टू नो. अच्छा, तो कोई एडवाइस आप उन लोगों को देना चाहेंगी, स्टूडेंट्स को, जो लोग डेंटिस्ट्री की फील्ड में आना चाहते हैं? व्हाट शुड दे कीप इन देयर माइंड्स? I think so. First of all, कि this decision should be entirely yours. आप किसी भी by force आने की जरूरत नहीं है या under pressure आने की जरूरत नहीं है. If you think कि आप बहुत ambitious हैं, बहुत passionate हैं इस चीज को लेके, you really want to become a dentist, then why not? You should come. It's a very prestigious profession, बहुत respectable है और बहुत अच्छा काम है कि you are helping out people, you are serving people. But I don't think so कि मतलब mostly अगर आप confused state of mind में you don't know कि आपने क्या बनना है, तो you should be very focused, you should be passionate and ambitious, very hardworking, very आपका मतलब stamina होना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबी पढ़ाई है ये. 4 साल की ग्रेजुएशन में खत्म नहीं हो जाती. तो you need to be very much determined. First of all, बहुत determination चाहिए. तो ये सब कुछ है. If you think you are capable enough, you're hardworking, so definitely you should become a dentist. Okay, so it was great talking with you, Farwa. I really enjoyed talking with you. And here is a small gesture from me to you.